is driving that BMW? I come from a country where more than 90% of its population recognizes itself as being from the middle or the lower income group. तो जो चाइल्डहुड था ना यार, वो सॉर्टेड सा ही था. कभी भी आई डू नॉट रिमेंबर एनी टाइम कमिंग इन वेयर एनी ऑफ माई नीड वॉज नॉट बीइंग फुलफिल्ड. बट आप सब लोगों की लाइफ की तरह इच्छाएं तो बचपन में कुछ ना कुछ मारनी पड़ती थी, राइट? नाउ व्हाट एंडेड अप हैपनिंग इज कि in my pursuit to find an answer to this question, which was who is driving that BMW, I thought that I would need to take certain unknown paths or unknown trajectories. The reason behind that was pretty simple. मेरे को ऐसा लगा कि यार नॉन कन्वेंशनल पाथ अगर मैं कहीं ना कहीं फॉलो करूंगा तो वहां से मेरे को लगता है कि नई चांसेस, नई डिस्कवरीज करने के ज्यादा होंगे. This was me 10 years ago, by the way, right? So, to answer this question, I chose what majority of India does. Engineering college में आ गया यार मैं. तो जब engineering college में आया, आप सब लोग भी इस चीज को definitely मानोगे, जो हमारा Indian engineering college है, वो हमें एक ये वाला सपना दिखाता है. As soon as you enter into an Indian engineering college, you are supposed to put your head down and start working towards this dream goal of getting that coveted 1 crore package from the top tech firms of the country. मुझे मजा नहीं आया इस वाले आइडिया में, right? Obviously, the money aspect was definitely amazing because that would have made me realize the actual dream that I set out with, which was कि I'll be able to drive that BMW, right? बट मेरे को लगा कि दूसरे तरीके से अगर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करें तो मजा आएगा. तो नाउ आई डिड समथिंग विच वॉज वेरी यूनिक एंड आई थिंक दैट इज स्टिल द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. आई started a YouTube channel while I was just 17 years old, right? मेरे को नहीं पता था what content I'll be making. I did not know how do I approach content. I do not know how do I market my content. I did not know branding. And heck, I did not know how will this content make money and help me achieve the dream of driving my own BMW, right? तो उस वक्त तक जितना समझ आता था, जो समझ आता था यार, आई थिंक शुरू किया. नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को स्कैन करके आए थे. सो व्हाट आई डिड वाज I started talking about college admissions wherein I would give my unbiased, unsolicited advice to college students कि आपको इस कॉलेज में जाना है या इस कॉलेज के अंदर आपको नहीं जाना है. Slowly and steadily, eventually क्या हुआ कि जो हमने ये शुरू किया था अपना YouTube पे content बनाना, this turned into a movement of some sort and suddenly we were doing millions of video views every month. Suddenly, we were the top college admissions channel in the country being run by an independent creator. I did not know कि ये सब चीजें कैसे हो रही थी, बस हो रही थी. एक चीज जिसने बहुत हेल्प करी मेरे को, my parents were very supportive about all of this, and there is this very profound thing that my dad said early on during this YouTube journey, which was कि यश हो सकता है कि जो भी तू सोशल मीडिया पे आज कंटेंट बना रहा है, इससे हमारे घर की कभी रोटी ना चल पाए, राइट? बट अगर कोई ऐसा पेरेंट जो इंडिया की एक टीयर 2, टीयर 3 सिटी में रह रहा है, अगर उसके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी वाला पेरेंट जो अपने पूरे जिंदगी की सेविंग्स अपने बच्चे की इंजीनियरिंग एजुकेशन पे लगा देता है, अगर उस चीज को आपने सॉर्ट कर दिया कहीं ना कहीं और उसके वो वाले पैसे सही जगह इन्वेस्ट करवा दिया, गलत जगह लगने से बचा लिए, तो आप हजारों फैमिलीज की तरक्की करवा दोगे जस्ट थ्रू योर सोशल मीडिया, राइट? इस चीज को यार हमने करना शुरू किया. स्लोली एंड स्टेडिली, वही टाइम देते हैं चीजों को तो चीजें ग्रो होती हैं. एंड अ वेरी यूनिक थिंग स्टार्टेड हैपनिंग. अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो हमारी सोशल मीडिया पे वीडियोज हैं, these are digital real estate for them which they could use and they could leverage my credibility to sell their product. And voila, मेरे को फॉर्मूला मिल चुका था, right? The answer which I was looking इस वाले पूरे क्वेश्चन का, that who is driving that BMW, I started inching closer to that answer with every branded video that I did, right?
अब जो पूरे इंडिया के डेमोग्राफिक्स हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बाय द वे एनआईटी हमीरपुर, आपके कॉलेज की वीडियो मैंने 5 साल पहले बनाई थी, तो इट्स अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इफेक्ट कि किस तरीके से कहीं की चीज कहीं पे फाइनली मिल जाती है, राइट। तो अब मैं आपको 3 क्लास डिवाइड्स इन इंडिया दिखाना चाहता हूं। इन इंडिया वी हैव द रिच क्लास, राइट, वी हैव द मिडिल क्लास एंड वी हैव द लोअर क्लास। The rich class of India, I personally feel they are driven by solid ambition. Mr. Manchanda and his wife went to a Singapore trip for their anniversary. तो अब मिस्टर ओबरॉय कहते हैं कि हम तो ऑस्ट्रेलिया में एक क्रूज ट्रिप ही करके आएंगे, राइट। ऐसी बातें होती हैं यार बड़े बड़े खानदानों में, जितना मेरे को समझ आया। When we look at the lower class of India, they are driven by solid enthusiasm. इस enthusiasm से क्या मतलब है कि उनकी लाइफ की ना यार छोटी छोटी खुशियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 8-10 हज़ार रुपए महीने की अगर उनकी सैलरी है, 5-6 महीने पैसे सेव करेंगे, अपनी फैमिली का पहला स्मार्टफोन खरीद के लाएंगे, राइट। उनके लिए खुशी है, नया है। मिडिल क्लास, हम और आप लोग, हम लोगों की भाई थोड़ी शैलो एस्पिरेशन है। वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी आर जस्ट लेजिंग अराउंड, वी डू नॉट वॉन्ट टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि सारे बेसिक्स बचपन से सॉर्टेड थे। घर में गाड़ी नहीं थी तो स्कूटर था, ब्रांडेड कपड़े नहीं थे तो ठीक ठाक से कपड़े थे, राइट। फोन सबके घर में था, इंटरनेट सबके घर में था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो देयर वाज नेवर अ फायर इन आवर बेली, राइट, कि भाई कुछ सॉलिड करना है। अब नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जो हमारे इंडिया की पुअर क्लास है, लिसन टू दिस केयरफुली, दैट इज बीइंग एलिवेटेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, राइट। जो हमारे इंडिया की रिच क्लास है, दैट इज बीइंग एलिवेटेड बाय देयर ओन मनी, क्योंकि वो रिच है, एंड बाय देमसेल्व्स, राइट। जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं फंस जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि आज मैं लोकल कपड़े पहन रही हूं, कुछ ऐसा हो जाए कि H&M एंड ज़ारा अफोर्ड करने की एकदम से आ जाए, गेट रिच क्विक स्कीम्स, वो हो नहीं पा रहा है। तो देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन दैट आई सजेस्ट इन दिस केस। व्हाट वी एज मिडिल क्लास पीपल नीड टू डू इज कि हम जो रिच क्लास हैं उनकी अगर हम एम्बिशन उठा लें, एंड जो पुअर क्लास है, द लोअर क्लास, वहां का हम एंथुसियाज्म उठा लें, और इन दोनों को अगर हम मिक्स एंड मैच कर दे, देन आई थिंक मैजिक इज क्रिएटेड, राइट। ये मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं। व्हाट इवेंचुअली एंडेड अप हैपनिंग इज कि जब यूट्यूब स्टार्टेड ग्रोइंग, 1-2 साल मेरे को इंडस्ट्री के अंदर हो गए थे, then a lot of industry people started labeling me as a growth expert or a growth hacker, and suddenly every month I was taking trips to Bangalore to meet the top entrepreneurs of the country, और उनके साथ कॉफी पे हम बस ये डिस्कस करते थे कि उनके नेक्स्ट मंथ की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर देयर कस्टमर्स, फॉर द स्टूडेंट्स दे वर केटरिंग टू, वो कैसी होनी चाहिए, राइट। दिस इज अ फोटो ऑफ मी विद द टॉप क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री, और ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव क्लब था कहीं ना कहीं, राइट, वेयर नाउ दिस एक्सक्लूसिव क्लब दैट वाज देयर, ये मेरे को नहीं लगता कि आप किसी कोल्ड ईमेल से अचीव कर सकते थे, राइट। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आप सब लोगों के लिए आती है इन दिस ईरा वेयर यू आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग दीज इंस्टाग्राम रील्स जो आपको कह रही हैं कोल्ड ईमेल करो, कोल्ड ईमेल करो। मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले शायद हम अपनी कुछ अस्तित्व बनाने में फोकस कर लें, राइट, हम अपस्किलिंग में फोकस कर लें, सो दैट जब हम कोल्ड ईमेल करें किसी को तो सामने वाले बंदे के लिए आपके पास भी कुछ टेबल पे रखने के लिए हो, राइट। तो उस चीज पे मेरे को लगता है कि हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। ये चीज अपने को समझ आ गई। Now when I ask a lot of people, I was talking to a lot of people outside the auditorium, I asked them, why aren't you putting yourself a lot more on social media? Why aren't you creating content? There is only a single answer which has 3-4 different versions जो मेरे को मिलते हैं। Yash, I am scared of the judgment and how people will perceive me while I create all these videos, right? Number 2, Yash, I don't like the way I look. How will people think of me when I create a video? Yash, I don't feel I'll be confident in front of the camera. मैं तो फंबल कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। एंड फाइनली एक बहुत ही यूनिक सा मिला कि मेरी तो आवाज बहुत ज्यादा श्रिल है, तो मैं कैसे ही कंटेंट वगैरह बना पाऊंगी, राइट। अलग अलग तरीके, बट जो फाइनल चीज निकल के आती है सब केसेस में आपको देखने को मिलेगा,
that it is fear of judgment. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब मैं क्लास 8 में था, हमारे स्कूल के अंदर एक पोएम रिसाइटल कॉम्पिटिशन हुआ करता था, हिंदी एलोक्यूशन जिसको बोलते थे. आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट. आई प्रेप्ड वेरी वेरी हार्ड फॉर दैट कॉम्पिटिशन. बस कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले समथिंग स्ट्राइक, और मैंने सोचा कि जो भी पोएम मैं रिसाइट करने वाला था, उस पोएम को अगर मैं एक दिन पहले चेंज कर दूं और अगले दिन वो नई पोएम जाके ऐसे ही स्टेज, सेम ऑडिटोरियम, इसके सामने बोल दूं, तो बहुत क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स को लगेगा कि अरे इसने तो कुछ और रिहर्सल किया था और एलोक्यूशन में जीत जाऊंगा. दैट इज हाउ अ 12 साल का बच्चा थिंक्स, बाय द वे. अगले दिन आई वॉक अप कॉन्फिडेंटली टू द स्टेज ऑफ द ऑडिटोरियम. ऐसी सेम ऑडियंस बैठी हुई है. आई स्टैंड, आई पुट माई माइक और मैं पोएम रिसाइट करना शुरू करता हूं. 30 सेकंड तक बहुत बढ़िया चलता है, एंड 30 सेकंड के बाद I fumble. The audience is looking at me. I don't know what to do. I take a deep breath and then I start reciting the poem again. This time, 20 seconds and I fumbled. Now my legs were shaking. Everyone was looking at me. And I did the most natural thing that a 12-year-old could do. I just ran away from the stage. Right? अगले दिन जब मैं आया स्कूल के अंदर वापस, वहां से लेके अगले 1 साल तक आई वॉज इन एक्सट्रीम सेल्फ डाउट. पीपल अराउंड मी सीम टू बी वॉकिंग नॉर्मली, बट मेरे को अपने कान में उनकी गिगल्स की गूंज होती थी कि सब लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, एवरीबडी इज जजिंग मी. इट वॉज एक्सट्रीम सेल्फ डाउट. नेक्स्ट ईयर का एलोक्यूशन आया एंड माई टीचर वॉन्टेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई डिड द सेम थिंग विच आई डिड लास्ट ईयर. आई रैन अवे. राइट. बट अगले दिन मेरे टीचर ने मेरे को पकड़ा. शी sat me down and that one day I think changed my life, and that is probably why I am standing here. The teacher told me, and listen to this very carefully, that people around you might not think as highly of you as you think, right? This is known as the spotlight effect, right? Spotlight effect basically says your mistakes are not as much noticed as you think. So there is a good news and bad news related to this. The bad news is कि आप सबको लगता है that you guys are the heroes of your own lives. You are the stars of your own lives. But the fundamental sad reality is you might be the star of your own lives, but you might or might not be the star of the lives of people around you, right? They might have their own problems and circumstances that they might be dealing with. तो आपको तो लग रहा है कि सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बट हो सकता है कोई कुछ सोच ही नहीं रहा आपके बारे में, राइट? तो वो चीज मेरे लिए एक बहुत फंडामेंटल रेवलेशन थी, और मेरे को लगा कि अब तो बहुत ये बढ़िया चीज है कि आई कैन मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज आई वांट, और मेरे को जजमेंट और ये बीइंग रिडिक्यूल्ड, बीइंग मॉक्ड, इन सबसे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. सो वी विल हैव टू रियलाइज दिस वन थिंग, विच इज कि if you choose to be on social media, you'll need to develop really, really thick skin. Why do I say that? Because it is a harsh world out there. Beyond all the whims and fancies that you think social media influencers in sabko milti hai, there is a lot of backlash that they have to face. There is a lot of ridiculing they have to face. There is a lot of mocking. But you continuously need to appear, show up, so that you can finally start reaping the benefits of social media. Now, I have this fundamental belief that social media of today is the new resume. Why do I say that? Because social media has fundamentally changed the way that people think. Why do I say that? जो लोगों का यार सोचने का तरीका है ना, बहुत ज़्यादा बदल गया है सोशल मीडिया आने के बाद. हमारी बहुत सारी इंटरैक्शंस असली रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही है. जब मेरा यूट्यूब उठने लगा, मैंने लिंक्डइन पे लिखना काफ़ी चीज़ें शुरू किया, और वहां से दिस इज बाय द वे समथिंग दैट आई रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू कॉलेज स्टूडेंट्स. आप सबको भी ये चीज करनी चाहिए. जब मैंने लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया, तो देयर इज दिस ब्यूटिफुल रियलाइजेशन दैट यू गेट आफ्टर सम टाइम. मैं सारा कंटेंट अपना रूम में बैठ के नॉर्मली कैमरा के सामने शूट कर रहा था. सो व्हेन आई यूज्ड टू गेट 50,000 व्यूज ऑन अ वीडियो और ऑन अ लिंक्डइन पोस्ट, और उसको 2,000 लोग लाइक करते थे, तो मेरे को लगता था कि ठीक है भाई 50,000 व्यूज हैं. बट यू विल हैव टू रियलाइज दैट दीज आर 50,000 पीपल हु हैव ब्लड रनिंग थ्रू देयर आर्टरीज एंड वेन्स. ये 50,000 असली लोग हैं. एंड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, दिस इज द नंबर और क्वांटम ऑफ पीपल जो सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में आते हैं दिल्ली के, राइट? एंड आई एम नो सुनिधि चौहान, राइट? तो वो वाला जो स्केल है, दैट स्केल यू कैन अचीव
through social media, and that is what I have realized, right? Quickly taking you through the Maslow's hierarchy of needs. ये एक सिंपल सा चार्ट है जो बेसिकली बताता है कि ह्यूमन की क्या क्या नीड्स एंड वांट्स होती है. सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, विच इज एयर, वाटर, फूड, शेल्टर. ये सब सोशल मीडिया ने सॉर्ट कर दिया. यू माइट हैव डेफिनेटली सीन दैट रील विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट एन इंस्टाग्राम रील क्रिएटर ऑफ टुडे अर्न्स मोर दैन द टॉप सर्जन ऑफ द कंट्री. तो ये चीज हमारी सॉर्ट हो जाती है, जो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड है. सेकंड, वी टॉक अबाउट द सेफ्टी नीड्स. इंडिया के अंदर इतने सारे ले ऑफ्स हुए, टॉप टेक कंपनीज ने, अमेजॉन, गूगल ने इतने ले ऑफ्स करे. सबसे जल्दी वो लोग जॉब मार्केट में बाउंस बैक करे जिनके कनेक्शंस थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो उन्होंने गूगल, अमेजॉन, फेसबुक में रह के बनाई थी अपना कंटेंट पोस्ट करके. तो उनके नेटवर्क ने अपनी इंडिविजुअल कंपनीज में इन लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया. सिक्योरिटी सॉर्ट हो गई. लव एंड बिलोंगिंग, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि आपके इंस्टाग्राम पे ज्यादा दोस्त हैं आज की डेट में असली रियल कॉन्वर्सेशंस के कंपैरिजन में. मेरे पेरेंट्स मेरे को ये समझाया करते थे कि यू नीड टू बी इन द राइट रूम टू सक्सीड. हाउएवर मैं अब कहता हूं कि यू नीड टू क्रिएट योर ओन डिजिटल रूम विद द राइट पीपल टू सक्सीड. नंबर 4, वी टॉक अबाउट क्रेडिबिलिटी. एस्टीम अपने आप डेफिनेटली बन जाती है. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इट्स अ ग्रेट वैनिटी मेट्रिक जो इंस्टाग्राम ने क्रिएट किया. स्नैपचैट स्कोर, दिल्ली में आपकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही डिफाइन होती है कि आपका स्नैपचैट स्कोर कितना है. And finally, we talk about self-actualization, which is the role of giving back to the society. जब ये सब कुछ इंसान हासिल कर लेता है, then they want to self-actualize. जो इंडिया के टॉप थॉट लीडर्स हैं, वो ऐसे ही अपना जो सारा कंटेंट है वो ट्विटर के थ्रू, यू टॉक अबाउट नवल रविकांत, यू टॉक अबाउट इलॉन मस्क, वो सब कुछ इसी तरीके से अपना जो कंटेंट है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं. सो फाइनली एंडिंग विद द क्वेश्चन दैट आई स्टार्टेड विद कि हु इज ड्राइविंग दैट BMW. All my life, I thought that the answer was money. I was brutally wrong. Money was just a consequence at best. I think the real answer is the people who are driving that BMW are the people who have the right visibility, the right access, and the right opportunity. What I mean by that, these are the creators of the country who are driving the BMW. These are the entrepreneurs, these are the businessmen of the country who are driving that BMW. You need to be seen more, you need to create more opportunities for yourself, you need to create more access for yourself through social media. So, my final advice, stop consuming, start creating, conquer your fear. Thank you so much.